अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart through your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 सूरत अन्नाजियात, आयत 15 से तिलावत होगी। सूरत नाजियात आयत 15 सब मिलकर पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So चांद आंटी हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम पढ़ रहे हैं सूरत है हमारी नाजियात और फ्रॉम आयत नंबर 15 onwards. Yes, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kathira to all my dear co-hosts and all my students. सूरत अन्नाजियात हम पढ़ रहे हैं। अन्नाजियात में नज़ा वर्ड है। नज़ा का मतलब है मौत की हालत, जान निकालना। ये मक्की सूरत है, 2 रुकू है, 46 आयात है। शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन फरिश्तों की कसम खाई जो बहुत सख्ती से भी जान निकालते हैं, रूह निकालते हैं, मौत के फरिश्ते, और आसानी से भी रूह कब्ज कर लेते हैं, उनकी भी कसम। और ये बहुत तेजी से काम करते हैं, सबकत ले जाते हैं, यानी बहुत फौरन इंस्टेंटली काम करने वाले फरिश्ते। फल मुदब्बिराती अमरा, फिर वो तदबीर करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इंतजाम के साथ। अमरा, अल्लाह के हर मामले को पूरा करते हैं। दे आर वेरी ओबीडियंट। तो ऐसे ओबीडियंट मौत के फरिश्तों की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम उठाकर फिर क्या फरमाया था? जवाबुल कसम में क्या था? यौम तरजुफुर राजिफा, आयत 6। जिस दिन कांपेगी जमीन, यानी कांपने वाली हर चीज कांपेगी। एवरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह विल शिवर। तो ये किसका जिक्र है? अब आयत 6 से लेकर आयत, जब पहला सूर फूका जाएगा। यस, आयत 6 से आयत 9 तक
قیامت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کانپنے لگے گی. پہلے سور کے پیچھے پیچھے، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر چیز کانپے گی، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. پھر آیت 7 میں کس کا ذکر ہے؟ دوسرا سور، تتبعها الرادفہ. پہلے سور کے بعد آف کورس دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو سیکنڈ ٹائم جب سور پھونکی جائے گی تو کیسا ہوگا منظر؟ قلوب یومئذ واجفہ. اب دوسرا سور پھونکتے ہی کیا ہوگا کہ تمام انسان وہ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ریسریکشن. تو جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت 8 میں؟ دلوں کا اور آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ آیت 8 میں کیا فرمایا؟ دھڑکتے، قلوب، ہاں دھڑکیں گے. یس، قلوب یومئذ واجفہ. سارے کے سارے دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دو میسج پہنچا رہے. دو میسج کون سے پہنچ رہے؟ کہ ایک تو دوبارہ انسان زندہ ہوں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ انسان کی پوری باڈی ہوگی اور اس کا دل دھڑک رہا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آپ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے اپنے دل پر، اور ابھی بھی ہمارا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں؟ دھڑک رہا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ وی آر الائیو. کہ میں زندہ ہوں. یو آر رائٹ، وی آر الائیو. تو میں ابھی زندہ ہوں اور پھر مر جاؤں گی، اور پھر سیکنڈ سور کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر دل اس طرح دھڑک رہے ہوں گے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایلیوژن نہیں ہے. قیامت کا دن کوئی ایلیوژن نہیں ہے، یعنی کوئی بھرم نہیں ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریالٹی. اور یہ ریالٹی کا پتہ کیسے چلتا ہے انسان زندہ ہے؟ کہ اس کا دل دھڑک رہا ہو. لیکن یہاں پہ دل دھڑکنے کے لیے ورڈ جو آیا ہے واجفہ. تب یہ سیکنڈ ریالٹی بھی ہم سمجھ لیں کہ دل زوروں سے دھڑک رہے ہوں گے. اب زوروں سے دل کب دھڑکتے؟ اس وقت تو ہمارا دل نارمل دھڑک رہا ہے. دل زوروں سے کب دھڑکتا ہے؟ خوف سے. ایک تو خوف سے، یو آر رائٹ. جب ہم بہت ڈرے ہوتے ہیں تب ایک دل بہت زوروں سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اور ایک کب دل زوروں سے دھڑک رہا ہوتا ہے. تھنک لاجیکلی، نیچرلی. جس کو ایکسپیرینس ہوگا وہ برابر جواب دے گا. باجی بہت تیز دوڑنے کی وجہ سے. ویری گڈ سانا. وین یو رن ویری فاسٹ، جب آپ دوڑتے ہو نا تیزی سے تبھی آپ کا ہارٹ ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دونوں ہی چیزیں ہوں گی. کیوں دوڑیں گے؟ کہاں دوڑیں گے بتاؤ؟ حشر کے میدان کی طرف باجی. ویری گڈ. جہاں سے بھی آپ جس بھی قبر سے، زمین کے جس حصے سے اٹھو گے، اور پھر ہر ایک دوڑے گا اس آواز کی طرف جہاں سے سور پھونکا جا رہا ہوگا، اور وہ ہوگا حشر کا میدان. تو سارے کے سارے انسان دوڑ دوڑ کے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے. تو جب دوڑ رہے ہوں گے تو دوڑنے کی وجہ سے بھی دل دھڑکے گا بہت تیزی سے. اور دوسرا خوف ہوگا. کس چیز کا خوف ہوگا؟ میں پاس ہوں گی یا نہیں. یس، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے. ہم سمجھ جائیں گے کہ اب ریزلٹ کا وقت آ گیا ہے. اور وہ سارے کافر جو انکار کر رہے تھے وہ ڈبل ڈریں گے. کیوں ڈبل ڈریں گے؟ ہم سے زیادہ وہ کیوں ڈریں گے؟ ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا غلط. وہ تو سب کو پتا ہے. ان کا ڈبل ڈر اس لیے ہوگا کہ وہ یقین بھی نہیں کرتے تھے قیامت کے دن. تو پہلے تو وہ اتنے شوق میں ہوں گے کہ ارے یہ بات تو سچ نکلی، اور ہم نے تو اپنے ہی ہاتھوں سے پیروں پہ کلاڑی مار لی، یقین نہیں کیا تھا اس دن پر، اور یہ تو سچ ہو گیا. تو اب ان کے لیے تو ڈبل ڈر ہے.
तो अब आप समझ रहे हो वाजिफा जो वर्ड है ये किसी नॉर्मल डरने के लिए दिल कितने जोरों से धड़क रहे होंगे। फिर फरमाया आयत 9 में, अब सौरुहा खाशिया, आंखें उनकी कैसी होंगी, झुकी हुई। तो इससे भी समझ आ रही है बात कि बॉडी पूरी की पूरी होगी, दिल भी होगा, आंखें भी होंगी, पूरी बॉडी डेवलप होगी। और फिर वो आंखें खुशू, खौफ से झुकी हुई, डरी हुई, घबराई हुई। और काफिरों की आंखें वो तो पछता भी रही होंगी। हम्म? और मुसलमानों में से भी जो लोग कयामत पर यकीन तो करते हैं बट उसकी तैयारी नहीं करते, वो और ज्यादा डरे हुए हों। कम खौफ किसे होगा या कौन रिलैक्स्ड होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। मुसलमानों में से कौन रिलैक्स्ड होंगे उस दिन? ईमान वाले। ईमान वालों में भी तो कैटेगरी है ना। तो एक फर्स्ट कैटेगरी जिसका पढ़े थे हमने सूरह बकरा की शुरुआत में, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? मुत्तकीन, जिनका तकवा का लेवल हाई होगा। तो दुनिया में जिसका तकवा का लेवल हाई होता है फिर उसका ईमान भी बहुत हाई, और उसके अमाल कैसे होते हैं? द बेस्ट। द बेस्ट। तो फिर उनके लिए हमने कुरान में पढ़ चुके हैं क्या आता है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। सिर्फ यही वो कैटेगरी होगी कि ना उनके लिए कोई खौफ होगा ना गम होगा, लेकिन फिर भी दिल तो उनके भी धड़क रहे होंगे। क्योंकि एक मुत्तकी अल्लाह से उम्मीद तो अच्छी रखता है, लेकिन क्या फरमाया कि इसके बीच में होता है खौफ और उम्मीद के बीच में। तो यस, खौफ तो उसको भी होगा, लेकिन उसको उम्मीद ज्यादा होगी अपने रब से कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही मामला करेगा। फिर हदीस में ये भी आता है कि जैसा मेरा बंदा मुझसे उम्मीद रखेगा, जैसे मुझसे तवक्को रखेगा, मैं उसके साथ वैसे ही मामला करूंगा। सुभान अल्लाह। सो ये था आंखों के बारे में। फिर 10 में और 11 में और 12 में, 13 और 14, इसमें हमने क्या पढ़े? वापस प्रेजेंट, आज के दिन, प्रेजेंट डे में क्या होता है कि जब कयामत का जिक्र होता है तो काफिर और मुशरिक क्या कहते हैं? आयत 10 में, यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा। वो कहते हैं कि क्या बेशक जब हम लमरदूदूना फिल हाफिरा, क्या हम लौटाए जाने वाले हैं पहली हालत में, जैसे हम दुनिया में जिंदा थे क्या वैसे दोबारा हो जाएंगे? अच्छा, तो इसमें सार्केज्म भी है, क्वेश्चन भी है, और सार्केज्म में उनका इनकार भी छुपा हुआ है। अइज़ा कुन्ना 11, क्या जब हो जाएंगे हम इजामन नखिरा, इजामन सड़ी गली हड्डियां, नखिरा सुराखों वाली, खोखली डिकेड बोन्स, तभी भी दोबारा जिंदा होंगे। कालू, उन्होंने कहा, तिल का इदन कररतुन खासिरा, तिल का तब तो, इदन जब, कररतुन लौटना, खासिरतुन बहुत ही नुकसान वाला होगा। फिर क्या फायदा दोबारा जिंदा करके? या अगर हम दोबारा सच में लौटाए जाएंगे और सच में हिसाब होगा तो फिर हम फेलियर्स ही होंगे। बट वी डोंट बिलीव इन दिस। फ़इन्नमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर बेशक, ही जजरतुन वो होगी, जजरतुन एक डांट, वाहिदतुन सिर्फ एक, ये कमांड होगा अल्लाह का जब सूर फूका जाएगा। ये सेकंड सूर का जिक्र है। वइज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर अचानक हम वो सब, बिस्साहिरा क्या होंगे? एक पलक झपकते ही सब जिंदा हो जाएंगे और जमीन हो जाएगी बिल्कुल साफ, एक चटियल मैदान।
اور سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ قیامت کا ذکر بار بار اللہ تعالی ریمائنڈر دیتے ہیں ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تاکید کی کہ ہم بار بار یہ نہ پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قیامت کی تیاری. تیاری. اور تیاری کیسی؟ تیاری کیسی؟ کہ ہم کو رب سے ملنا ہے ایک دن، تو ہم ہمارا خود کا محاسبہ کر لے اور سدھر جائے اور عمل اچھے کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تیاری ایسی کہ ابھی نیکسٹ پل آ سکتی ہے قیامت. تو نیکسٹ پل قیامت کیسے آئے گی؟ کہ میری موت ہی منی قیامت ہے میرے لیے، جس کا ذکر شروع میں ہی ہو چکا. موت کے فرشتوں کا ذکر آ چکا. تو یا تو موت یا قیامت، دونوں میں سے پہلے کیا آئے گی ہم کو نہیں معلوم، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن اگر قیامت کی بات ہے تو پھر بھی تھوڑا ٹائم ہے، کیونکہ وہ ساری نشانیاں جو بتائی گئی ہے وہ ابھی ہوئی نہیں ہے پوری. تو پہلے تو پھر میری موت بھی آ سکتی ہے، اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو پھر میری تیاری کیسی ہو؟ ایسی تیاری جیسے کہ ایمرجنسی سچویشن ہو، جیسے کہ ایمرجنسی سچویشن. کیونکہ دیکھو نیکسٹ پل، ابھی میں بات کر رہی ہوں نا، ابھی بھی میں ختم ہو سکتی ہوں، آپ بھی، کوئی بھی، جس کی جب لکھی. تو یہ ایمرجنسی ہے یا نہیں موت؟ تو ہم تو کتنا ریلیکسڈ بیٹھے. تو اچھا، ایمرجنسی سچویشن میں اگر مجھے تیاری کرنی ہے موت اور قیامت کی، ون ورڈ کی اگر تیاری ہے، ایک پل کی، تو وہ ایک پل میں میرے زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ دو باتیں ہونی چاہیے میری زبان پر. ایک تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دوسرا لا الہ الا اللہ. تو پھر اب ہم یہ ہماری ایمرجنسی کے کلمات سیکھ لیں کہ ہماری زبان پر زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہو، اور استغفر اللہ ختم ہوتے ہی میری زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انشاءاللہ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے کہ کوئی فالتو کی باتیں کرنے کے بجائے بس اپنی تیاری میں لگے رہے. ایٹ لیسٹ یہ زبان کی تیاری ہم شروع کر دیں. دوسری تیاری کیا ہوگی؟ ہمارے اعمال سدھارنے ہیں. تو اعمال سدھارنے کے لیے کون سدھارے گا میرے اعمال؟ ہم خود. ہم خود. کیسے سدھاریں گے؟ قرآن کے ذریعے. تو جتنا زیادہ ہم قرآن سے جڑے رہے، تلاوت اپنی جگہ ہے، لیکن صرف تلاوت میرے اعمال نہیں سدھار سکتی. تو قرآن کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم پورا دن بیٹھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہم قرآن کلاسز میں بیٹھتے ہیں اور یہیں پہ تو ہم قرآن کو سمجھ رہے، اور دھیرے دھیرے ہمارے اندر چینجز آ رہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم قرآن کلاسز اٹینڈ کریں. یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو بھی آپ کو پسند ہو اس ٹیچر سے آپ سنتے رہے، اور اپنے آپ کو، تبھی ہمارا کریکشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ. رائٹ؟ تو یہ ہماری تیاری ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 15 سے ہمیں تھوڑا اور پاسٹ میں لے کر جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے آیت 15 میں، حل کیا اتاک، کیا آئی آپ کے پاس، حل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کاف ہے جس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈنڈی والے کاف میں ایس نظر آ رہا ہے نا. تھوڑا سا زوم کر دیجئے شمیم اسکرین کو. تو حل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس، حدیث موسیٰ، حدیث تو کہتے ہیں بات کو، کیا وہ بات آئی آپ کے پاس؟ کس کی بات، کس کی خبر؟ موسیٰ علیہ السلام کی.
अब अल्लाह ताला हमें मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल देकर कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ और गाइडेंस। इज, जब, नादाहू, नादा में निदा वर्ड है, निदा का मतलब होता है पुकारना, जब पुकारा उसको, वो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जब पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु, उसके रब ने, यानी अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहाँ पर हुआ था ये? बिलवादी, बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, मुकद्दस वादी में। मुकद्दस का मतलब होता है बहुत ही पाक साफ, सेक्रेड वैली, इन द सेक्रेड वैली ऑफ तुआ, यानी ये तूर पहाड़ की वादी है। तुआ, तूर पहाड़ की वादी, वैली ऑफ द माउंट तूर। और उसे कौन सी वादी फरमाया अल्लाह ताला ने? ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, वेरी प्योर। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी, बताइए? गारे सार, नहीं, गारे गारे, हिरा बाजी। गारे हीरा, हीरा। वेरी गुड। तो वो गार, वो केव कौन से पहाड़ पर है? कौन बताएगा? जबले नूर बाजी। जबले नूर, जी बाजी। आपको अच्छा, जबल का मतलब क्या होता है? पहाड़। 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 और फिर उस पहाड़ का नाम क्या है? जबले नूर नूर। बाजी। हाँ, तो नूर नाम है पहाड़ का वही बता रही हूँ मैं आपको। अगर जबल का मतलब पहाड़ है तो नूर उस पहाड़ का नाम है। समझ आई बात? अभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर वही पहली नाजिल हुई तूर पहाड़ पर, है ना? तो वो क्या हुआ? जबले तूर समझ आया? और ये है जबले नूर। जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन आप वहां लिख भी लीजिए। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबले नूर पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, यानी कुरान नाजिल हुआ, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कोहे तूर यानी पहाड़ तूर पर, इस मुकद्दस वादी में अल्लाह ताला ने उनको पुकारा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उनको वहां पर पुकारा था। और फिर जो हुआ वो हम पढ़ चुके थे दूसरे सूरा में। अभी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, वो क्या थी? इज, जब, आयत 17, इज, जब, हब, हब का मतलब क्या होता है? आप इज जाओ। हब, आप जाओ, है ना? अल्लाह ताला ने कमांड किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा तुम जाओ, इला फिरऔन, इला यानी तरफ, फिरऔन के, इन्नहु, बेशक वो, अब हु किसके लिए आया? फिरौन के लिए, कि बेशक वो फिरौन जो है, तगा, बहुत सरकश हो गया है। सरकश का मतलब, तगा का मतलब होता है हद से बढ़ गया है। ही हैज ट्रांसग्रेस्ड ऑल द लिमिट्स। और उसका सबसे बड़ा ट्रांसग्रेशन क्या था? हद से बढ़ना क्या था फिरौन का? बाजी वो खुद को खुदा बोलने लगा था। एग्जैक्टली, वो अपने आप को रब समझता था। फिर उसका और ट्रांसग्रेशन था कि वो बहुत तकब्बुर करता था, ही वॉज वेरी प्राउड। और वो जुल्म करता था बनी इसराइल पर, उसने बहुत जुल्म किए, हद से आगे बढ़ गया जुल्म सितम में। हम्म? तो कितने सारे उसके गुनाह हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को, जब उनको कोहे तूर पर बुलाया, उनको नबूवत से नवाजा, फिर फर्स्ट कमांड दिया कि ए मूसा तुम जाओ फिरौन के पास, वो बहुत सरकश हो गया है। और फिर उसके बाद का हमको पता है जो यहाँ पे नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला से क्या कहा था?
जब ये टास्क मिला उनको अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ताला से क्या फरमाया था मूसा अलैहिस्सलाम ने? He needed To his remove brother Harun alayhi salam. हाँ, क्या कहा था उन्होंने? मेरे भाई हारून को या अल्लाह उसे मेरे साथ भेज दो। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की, और दोनों भाई मिलकर अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों जाओ फिरौन की तरफ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने और क्या क्या दुआ की थी अल्लाह ताला से? कौन सी दुआ की थी, याद है? रब्बिश रहली सदरी। Rabbi यस, in रब्बिश रहली, वेरी गुड। तो मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए इट वाज नॉट इजी ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो फिरौन को पहचानते थे, जानते थे कि वो कितना जालिम था और कितना जुल्म करता था बनी इसराइल पर। और मूसा अलैहिस्सलाम से भी जो एक गलती हुई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज मोस्ट वांटेड। अब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के हर इंसान, हर बादशाह को छोड़कर बस इसी बादशाह के पास वापस जाने का हुक्म दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी लाइक कि अल्लाह सब पूरी दुनिया को छोड़कर अब मुझे वापस उसी के पास जाना है जिससे भाग के मैं यहाँ आया था, राइट? तो मूसा अलैहिस्सलाम डरे हुए थे कि नहीं? ऑफ कोर्स डरे हुए होंगे, इंसान भी थे। जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, तो वो क्या देखकर डरे थे और घबराए थे और पसीने छूट रहे थे, नाउजुबिल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम के विंग के एक्सपैंस को देख के वो डर गए थे बाजी। एग्जैक्टली तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी माइट कैसे दिखाई? अल्लाह के हुक्म से ही तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, ताकि गैब जो है, गैब पर कैसे ईमान आ जाए उनका बिल्कुल पुख्ता। और जो जो काम मिला है, देखिए, कि जो फरिश्ता मेरे पास आया और जिसने मुझे पहली वही कुरान की दी, उसका ये पावर है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का क्या पावर होगा? तो फिर ये वही अल्लाह की कितनी पावरफुल है। ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरनलाइज कर लिया उनको देखकर, और खौफ भी आया था। अल्लाह अकबर। अब इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खास बात कौन सी थी उस रात, उस कोहे तूर पर? सबसे खास बात क्या हुई उनके साथ जब अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया? तो अल्लाह ताला से बात करना। फिर दूसरी दूसरी खास बात क्या थी? कैसे डरे थे मूसा अलैहिस्सलाम वहां खड़े होकर, याद है किसी को? tajalli. तो जल्दी से पहले पहाड़ बाजी वो टुकड़ा हो उससे गया था। पहले उससे पहले देखिए, ये सब कुछ हम कुरान में बार बार पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, बिकॉज है ना, हर जगह पर सारा वाकया नहीं आता है, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस आते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं है, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू फुली। और क्या हुआ था? किसी का हाथ ऊपर है? सुरैया का हाथ ऊपर, यस सुरैया। बाजी आसान जो सांप की यस, टोपी हो। वेरी गुड सुरैया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बात लाइट करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा? तो वो क्या बोले थे? मेरे हाथ में तो लकड़ी है, मैं इससे क्या पत्ते झाड़ता हूँ, मेरी बकरियों को चराता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपनी लकड़ी को फेंक दो। अब इतनी काम की चीज है, अभी अभी बोले कि ये मेरी काम की चीज है, बोले फेंको इसको नीचे। तो बोले अच्छा चलो, फेंक दिया नीचे। अब वो अचानक से क्या बन गई? सांप बन गई। वो सांप बन गई, तो सांप देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डरेंगे कि नहीं डरेंगे? ऑफ कोर्स वो डरे, और वो तो पीठ फेर के भागे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अरे मूसा भागो नहीं, भागो नहीं, डरो नहीं, कम बैक कम बैक। तो बोले आए, अच्छा चलो वापिस आए। अभी आए तो आए, सांप सामने। अब वो सांप हिल रहा है, आपको पता है सांप
कैसे हिलता रहता है। तो बोले कि अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब इस सांप को पकड़ो। या अल्लाह, ये क्या बात हुई, सांप को पकड़ो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा डरो नहीं, इस सांप को पकड़ो। अब कितनी मुश्किल बात है ये कोई आसान चीज है। एक तो अल्लाह ताला की आवाज आ रही है, अब लकड़ी बन गई सांप, अब उसको पकड़ो। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम डरो नहीं, इसे पकड़ो। अब कितनी हिम्मत से उन्होंने उसे पकड़ा होगा। आप में से, हम में से कोई ये कर सकता है? आपको अगर कहा जाए कि ये ना मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, सांप पकड़ो अपने हाथ से, पकड़ेगा कोई? चांद आंटी आप पकड़ोगे? सुरैया तुम नहीं, पकड़ोगी? नहीं। आप बोलोगे ना तुम मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो, इस सांप को हटाओ यहाँ से। पैसे की बात मैंने इसलिए की कि वी आर लाइक मोर इनटू मॉनेटरी अट्रैक्शंस, फिर भी हम नहीं करेंगे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सांप को पकड़ा तो अल्लाह के हुक्म से वापस लकड़ी हो गई। तो ये क्या था, मौजज़ा, ताकि उनको यकीन हो जाए कि ये मेरा रब है अल्लाह सुब्हानहू। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, ताकि यकीन हो जाए ना पुख्ता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था नहीं देख सकते, क्योंकि हम ह्यूमन, हमारी ह्यूमन आईज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को देखने के लिए कैपेबल ही नहीं है। और अल्लाह की जात, अल्लाह की शान, कैन यू इमेजिन, पूरी कायनात को बनाने वाला वो रब, क्या उसकी मैजेस्टी होगी, कैसे हम उसे देख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि ये जो पहाड़ देख रहे हो बाजू में, आपको पता है एक पहाड़ के बाजू में दूसरा पहाड़ भी होता है, कितने पहाड़ होते हैं एक दूसरे के बाजू में। फरमाया कि इस पहाड़ को देखो, मैं अपनी थोड़ी सी तजल्ली इस पर करूंगा, तो देखना। जैसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया और अपनी तजल्ली फरमाई, तो क्या हाल हुआ उस पहाड़ का। रेजा रेजा हो गया। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने पूरा पहाड़ चूरा चूरा होके जमीन पर फैल गई सारी उसकी मिट्टी और पत्थर। तो हम कैसे देख सकते, तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़े उनको दिखाए। अब एक के बाद एक दिल दहला देने वाले उन्होंने वाकयात देख लिए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये नेक्स्ट कमांड जो दे दिया कि अब तुम जाओ फिरौन के पास। बोले अरे हारून को भी भेज दो। बोले अच्छा, उनको भी बना दिया नबी, सो यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। फिर उन्होंने दुआ की, यानी ही वाज मेकिंग सम कि मैं जितना हो सकता है एक्सक्यूज तो करूंगा नहीं, भाग के जा नहीं सकता, अल्लाह ने जो फरमाया वो तो करना ही है। नबी बना दिया, अब आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरा सपोर्ट सिस्टम जमा करूं। भाई को सपोर्ट बना लिया, उसको नबूवत मिल गई। फिर बोले मेरी जबान में क्या है, लुकनत है, तो रब्बिश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और अल्लाह आसान कर दे मेरे काम को, वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी, और तू मेरे जबान की लुकनत को खोल दे, यफकहू कौली, ताकि वो मेरी बात समझ सके। फिर उनको जाके मैं क्या बोलूंगा, अल्लाह तो मेरी जबान में, मेरे दिल में इतनी वुसअत, इतनी ताकत, इतना पावर भर दे कि मैं फिरौन के सामने जाके अपनी जबान भी खोल सकूं, और ताकि वो मेरा मैसेज सुनकर समझ सके। क्योंकि मैसेज तो तेरा है बट जबान तो मेरी है, और वो है जालिम। तो जब भी हम किसी को भी ये मैसेज पहुंचाए, पहले ये दुआ पढ़ ले। और फिर अब जब वो पहुंचे फिरौन के पास, तो क्या हुआ, आयत 18 में, फिर कुल कुल आता है ना कुरान में बार बार, किसके लिए आता है कुल कुरान में बार बार? कहा नहीं, आप सत्संग करते? नहीं। आप कहिए। हम्म, आप देखिए, कह दीजिए। वेरी गुड, आप कह दीजिए। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आता है कुल में, समझिए।
यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे फकुल, फिर आप कह दीजिए ए मूसा अलैहिस्सलाम, या मूसा आप कह दीजिए, हल क्या है, लक लिए तेरे, क्या हुआ है तुझे। अब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप ऐसा कहिए, किससे, लक, क यहाँ पर किसके लिए आया है बताइए। फिरौन। वेरी गुड, ये लिखना होगा वरना हर जगह मोस्टली, अभी पिछली एक आयत में क आया था, आयत 15 में क किसके लिए आया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वेरी गुड, तो देखिए क जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास नहीं है, क का मतलब है तू, तेरे लिए, तो वो एक प्रोनाउन है। यहाँ पर कुल भी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, आपने लिख लिया कुल के नीचे अंडरलाइन करके, फकुल आयत 18, फिर कह दीजिए मूसा अलैहिस्सलाम, हल्लक क्या हुआ है तुझे, ये क है फिरौन के लिए, क्या हुआ है तुझे, इला अन तज़क्का, क्या है लिए तेरे, इला तरफ, अन के, तज़क्का तू पाकीज़गी हासिल करे। इसका मतलब है क्वेश्चन करो फिरौन से कि ए फिरौन, वुड यू लाइक टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, क्या तू अपना तज़किया करना चाहता है, क्या तू सुधरना चाहता है, क्या तू तौबा करना चाहता है, क्या तू अपने रब की तरफ झुकना पसंद करेगा या नहीं। ये है इस आयत का मतलब कि ए मूसा अलैहिस्सलाम आप जाकर कह दीजिए फिरौन से कि ए फिरौन, क्या अभी वक्त नहीं आ गया कि तू सुधर जाए, चल तेरे लिए एक और चांस है, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि तेरे पास एक और मौका है, क्या तू सुधरना चाहता है, तौबा करना चाहता है तेरे तमाम गुनाहों की। तो एक मौका और तेरे लिए, आर यू रेडी, डू यू वांट टू टेक दिस चांस। आयत 18 समझ आ गई, फिर आयत 19 की तरफ पढ़ते, वो अहदियक, वो और, अहदियक मैं हिदायत दूं तुझे, यहाँ पे किसके लिए आए हैं, मैं, हदिया तो समझ में आता है आपको, हिदायत, और मैं हिदायत दूं क तुझे। अब मैं कौन है और तू कौन है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम और तू फिरौन। वेरी गुड, और ये आपको लिखना होगा क्योंकि देखिए जब अभी मैं पढ़ा रही हूँ आप इस कॉन्टेक्स्ट में अंदर इस टॉपिक में डूबे हुए हो तो आपके लिए आसान है समझना, लेकिन नहीं लिखोगे, एक साल बाद ये पारा खोलोगे तो आपको नहीं पता होगा ये किसके लिए। एंड ऑल दोज हु वांट टू टीच, दोज हु वांट टू बी टीचर्स, तो ये हमारे पास बहुत जरूरी है लिखा हुआ हो कि कौन किससे बोल रहा है, राइट। और कितने आप में से इस नियत के साथ बैठते हैं कि हमको भी पढ़ाना है, एटलीस्ट नियत तो हो। जरा हाथ ऊपर करे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टीच। माशाल्लाह काफी हाथ ऊपर है, तो फिर तैयारी भी तो उसकी भी टीचिंग की तैयारी होनी चाहिए ना, कि हम ये सब इस तरह लिखें कि फिर पढ़ाना आसान हो जाए, राइट, इंशाल्लाह। ओके, because we teachers also have to prepare and we prepare, we make notes। मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, मैं दूसरे टीचर्स का नहीं बता सकती हूँ, ना मैं स्कॉलर हूँ, ना आलिमा हूँ, ना हाफिजा हूँ। हम सिर्फ क्या करते, मैं क्या करती हूँ, दूसरे स्कॉलर्स को सुनती हूँ और नोट्स बनाती हूँ, हाँ थोड़ा और रिसर्च करती हूँ और फिर लिखती हूँ और फिर आपको पढ़ाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें हक अदा करने वाला बनाए। और फिर वो हदीस भी है ना कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, आप सीख रहे हो, साथ साथ सिखाना भी शुरू कर दो ताकि हम दोनों हक अदा करने वाले बन जाए। अल्लाह को राजी करने का ये बेहतरीन तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह।
आयत 19, वअहदियक, और मैं हिदायत दूं तुझे, इला रब्बिक, हिदायत किसकी तरफ, इला तरफ, रब्बिक तेरे रब के, यानी क्या मैं तुझे बताऊं कि तेरा रब कौन है? क्या तू जानना भी चाहता है कि तेरा रब कौन है? फतखशा, जब तू जान जाएगा तेरा रब कौन है, फिर क्या होगा, फ फिर तखशा, फिर तेरे अंदर खुशू आएगा, तब तेरे अंदर अपने रब का खौफ भी आएगा, उससे मोहब्बत भी हो जाएगी, तब तो उससे तू माफी भी मांगेगा, तब तो तू उससे दुआएं भी मांगेगा। पहले जान तो जा कि तेरा रब कौन है। तो इस आयत का मतलब, यहाँ हिदायत का मतलब है, लेट मी गाइड यू टूवर्ड्स योर लॉर्ड, मैं तुझे तेरे रब की पहचान कराऊं, मैं तुझे तेरे रब से दोस्ती कराऊं, कनेक्ट करा दूं। जैसे अगर आप किसी से कभी मिलते हो, फिर आपको कोई कहे कि आप, मेरी एक फ्रेंड है, कुरान क्लास लेती है, वो पढ़ाती है, क्या मैं आपको उनका फोन नंबर दे दूं? क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? क्या आप उनकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो? क्या मैं आपको कुरान क्लास की लिंक भेज दूं? यही करना होता है ना हमको, करते हैं या नहीं? तभी तो देखिए कि फिर क्या होता है, हम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं इन क्लासेस से, और क्लासेस किससे कनेक्ट कर रही है? अल्लाह ताला से, अल्लाह की किताब से। तो फिर हमारा काम क्या है? जोड़ने का। हमारा काम क्या है? बस जोड़ने का, ताकि हम एक दूसरे को किससे जोड़े, किससे जोड़े? अल्लाह से। अल्लाह से जोड़े, अल्लाह की किताब से जोड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े। तो इस बात में फिर क्या आता है, कहीं भी मैं नहीं आना चाहिए, मैं किसी को मुझसे नहीं जोड़ू, हाँ, मेरे जरिए अल्लाह से जोड़ू। तो फिर हमारी क्लास में बात किसकी हो? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की बात हो, ताकि हम अल्लाह से मोहब्बत दिलाए, अल्लाह की तरफ एक दूसरे को जोड़े। जब ये हम कर लें तो फिर ये जो फतखशा है ना, ये क्या है? ये इसके बाद अपने आप ये काम हो जाएगा कि अल्लाह का खुशू दिल में आ जाएगा। खुशू कहाँ होता है? सीने में। सीने में, दिल में। आयत 20 भी कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे ये आयत 19 और 20 पे और थोड़ा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। वह फिर अराहू, फिर से आया यहाँ, फिर से मैं के लिए आया है। फअराहुल आयतल कुबरा, फिर दिखाई उसने, वो उसको, किसने किसको दिखाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दिखाई। क्या दिखाई? आयतल, आयत कहते हैं निशानी, मौजज़ा। कैसी निशानी? कुबरा, कुबरा में कबीरा वर्ड है, सबसे बड़ी, सुपरलेटिव बन गया है, सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा मौजज़ा दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम ने। किसको? हु? फिरौन को। अब ऑब्वियसली, अब आप ये सोचिए कि फिरौन गया हारून अलैहिस्सलाम के साथ, सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम गए हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में। अब फिरौन क्या जानता नहीं मूसा अलैहिस्सलाम को? ऑफ कोर्स जानता है। फिरौन ने कहा, अच्छा आ गया तू मूसा, कहाँ गायब हो गया था? अब मूसा अलैहिस्सलाम वो सब बातें छोड़कर फिरौन से कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं कौन बन गया हूँ? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बोलिए, क्या कहा होगा आप मूसा अलैहिस्सलाम ने? मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का मैसेज लेके आया हूँ। एक मिनट है।
हाँ, ऑफ कोर्स मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज लेकर आया हूँ ए फिरौन। अब ऑफ कोर्स फिरौन ने क्या किया होगा ये सुनकर? तकब्बुर से भरा था ना, तो मानने को तैयार नहीं होगा। पहले हंसा होगा बाजी। ऑफ कोर्स तो हंसा होगा, राइट। पहले बहुत हंसा होगा फिरौन, और मजाक उड़ाया होगा और कहा होगा अच्छा अच्छा, तू अभी अल्लाह का नबी बन के आया है मेरे पास, अल्लाह का पैगंबर बन के आया है। तो फिर उसकी हंसी को इग्नोर करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ए मूसा, मैं तुझे अल्लाह की तरफ बुलाने आया हूँ जो रब है। तो मूसा फिरौन ने कहा अच्छा, वो तेरा रब है? कौन है अल्लाह, बता तो। फिर हमें आयतें क्या मिलती है दूसरी सूरतों में कि फिरौन ने क्या कहा था अपने मिनिस्टर्स से कि क्या लगाओ आसमान पर, सीढ़ियां लगी। आसमान पर सीढ़ियां लगाओ और जरा चढ़ के देखो कहाँ है वो रब। कौन से रब की बात कर रहा है फिरौन? सॉरी, कौन से रब की बात कर रहा है मूसा? हाँ, अल्लाहू अकबर। तो इस तरह उसने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया और अपनी निशानियां बताई। कौन से मौजज़े बताए? नंबर 1 असा, असा। नंबर 2 बैदा, हाथ जो अपने हाथ, अपने हाथ फोल्ड किए अपने बाजू की तरफ, जैसे यू फोल्ड योर हैंड्स और फिर हाथ निकाले तो वो चमकने लगे। यस, तो ये 2 निशानियां पहले तो बताई। ये देखकर क्या किया फिरौन ने, वो हमें अभी आगे आ रहा है 21 में। फकज़्ज़ब, फिर उसने झुटलाया। किसने झुटलाया? फिरौन ने झुटलाया। व असा, और उसने नाफरमानी की। यानी उसने क्या कहा, क्योंकि वो दौर कौन सा दौर था? जादू का दौर था, और जादूगरी बहुत आम थी उस दौर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने क्या कहा कि ये मूसा, तू जादू सीख के आया है, तू जादूगर बन गया है और मुझे अभी जादू के खेल दिखा रहा है। तो मजाक उड़ाया, झुटलाया और नाफरमानी की कि तू कोई नबी नहीं है और ये कोई अल्लाह के मौजज़े नहीं है, बल्कि तू झूठ बोल रहा है। सुम्मा आयत 22, सुम्मा फिर, अदबर, उसने पीठ फेरी, उसने पीठ फेर दी। यस आ, दौड़ते हुए, तेजी से यू टर्न ले लिया, अपनी पीठ फेर दी। फहशर, फिर उसने जमा किया। फहशर, हशर का मतलब होता है जमा करना। तो फिर फिरौन ने जमा किया। फनादा, फिर उसने पुकारा। किसको जमा किया, किसको पुकारा? फिरौन ने अनाउंसमेंट की। अच्छा, कि अगर मूसा जादू सीख कर आया है तो अनाउंसमेंट क्या करवाई उसने कि पूरे उसके शहरों में तमाम अनाउंसमेंट की जाए कि जितने भी जादूगर हैं सारे जादूगरों को जमा करो, और फिर होगा एक मुकाबला। देयर विल बी अ कंपटीशन नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी नहीं, नेशनल लेवल पर यहाँ पर अब जादू का मुकाबला होगा। और फिर हम दिखाएंगे मूसा को कि क्या तू जादू करता है, हमारे पास तो तेरे से भी बेहतरीन एक्सपर्ट जादूगर है। तो अनाउंसमेंट की गई और दिन फिक्स किया गया। और फिर जब वो पूरा स्टेज सजा दिया गया, सारे जादूगर एक तरफ और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, तो खड़ा हुआ फिरौन और 24 में उसने क्या बोला? फ़क़ाल, फिर बोला फिरौन, क्या बोला फिरौन? अना, मैं, अना, मैं, रब्बुकुमुल आला, रब्बुकुम, मैं तुम सबका रब हूँ। क्या अनाउंस किया? बड़े
तकब्बुर, बड़े प्राइड के साथ फिरौन बोला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका रब हूँ, आला सबसे आला, सबसे बड़ा, सबसे निराला। नौजुबिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह। और ये क्या था? ये फिरौन का तकब्बुर, उसका प्राइड सर चढ़ के बोल रहा था, और ये उसने सबसे बड़ा शिर्क किया। अपनी जबान से अपने आप को रब कह दिया, तो ये क्या हो गया? उसका सबसे बड़ा शिर्क हो गया कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही रब। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह। अभी इसके रिजल्ट में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ क्या किया वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा तज़किया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आया था फतख्शा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से फिरौन को मैसेज दिया, तो ये एक दाई का काम है, किस तरह अल्लाह की तरफ बुलाना। तो हमें ये बार बार ये आयतें अल्लाह ताला इसलिए देते हैं ताकि हम तरीका सीखें, नबियों का तरीका, कि कैसे उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाकया बयान अल्लाह ताला ने जो शुरू किया आयत नंबर 15 से, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आई आपके पास मूसा अलैहि सलाम की खबर? ये इसलिए था क्योंकि मक्का वालों को भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तरफ बुलाते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते, तो इन लोगों के भी जो रिजर्वेशंस थे, वो लोग जैसे अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा एंड कंपनी, अबू अबू लहब, कैसे इनकार करते थे। उनके पास भी तकब्बुर था। इसलिए अबू जहल को क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो इस जमाने का फिरौन है, मिनी फिरौन, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत तकब्बुर था। आखिरी मरते दम तक भी उसका तकब्बुर कैसे बोल रहा था कि मेरी मौत कैसे हो, मुझे कौन कत्ल करे, कौन ना करे, मेरी गर्दन काटी जाए तो कहाँ से काटी जाए। व्हाई, व्हाट वाज दिस? तकब्बुर। तकब्बुर। अब हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहि सलाम को भी तो सबसे बड़े तकब्बुर करने वाले को किसका सामना करना पड़ा, और उसी को मैसेज देना पड़ा, और वो तो अपने आप को रब कहता था। यहाँ पर आपके पास तो अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा एंड कंपनी, कम से कम ये अपने आप को रब तो नहीं कहते, कम से कम ये अल्लाह के घर का तवाफ भी कर रहे हैं, अल्लाह को मानते तो है, अल्लाह को जानते तो है। यहाँ पर तो फिरौन फिरौन कहता था हूँ अल्लाह, कौन अल्लाह, मैं ही रब हूँ। तो आप सिचुएशन देख रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आपकी सिचुएशन देखिए और मूसा अलैहिस्सलाम की देखिए और उनका टास्क देखिए। तो अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहे हैं इस वाक्य के जरिए। बात समझ आ रही है? अब आप और मैं, हमारे पास ना हमको फिरौन के पास जाना है, ना अबू जहल के पास जाना है कुरान की तबलीग करने। हमको किसके पास जाना है? वन वर्ड आंसर दे सकते हो कि सबसे पहले मुझे और आपको किसको अल्लाह से जोड़ना है? पहले खुद को बाजी। खुद को। तो हम खुद को जोड़ लिए माशाल्लाह, अभी हम देखो पढ़ रहे सुन रहे। इसके बाद किसका नंबर आएगा? यू आर राइट सुरैया, फैमिली बाजी। फैमिली, वेरी गुड। अभी मेरा और आपका टास्क तो अपनी फैमिली को जोड़ना है। क्या मेरे फैमिली वाले और आपके फैमिली वाले अल्लाह का इनकार करते? नौजुबिल्लाह, नहीं करते, है ना। तो अब हमें ये देखना है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी और आपकी फैमिली को तो फिर अब आप सिचुएशन कंपेयर कीजिए वापस।
ایک میری سچویشن، یعنی آپ اپنی رکھیے، اب میری سچویشن ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن. اب بتائیے سب سے مشکل کس کا کام تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل، ان کا بھی کام بہت مشکل ہی تھا. لیکن میرا اور آپ کا آسان ہے یا مشکل ہے؟ پھر آسان ہے باجی. الحمدللہ. تو ابھی کیسے کرے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم انہی کی سنت پہلے دیکھیں گے کہ ایک دائی کا رول کیا ہے. نمبر 1 اللہ سے جوڑنا. نمبر 2 لکھ لیجیے آپ، ایک دائی کا رول کیا ہے، کیا کام کرنے ایک دائی کو؟ 2 کام کرنے. نمبر 1 اللہ سے جوڑنا. نمبر 2 تزکیہ کروانا. نمبر 2 تزکیہ کروانا. اب یہ دونوں ہی کام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ٹول ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. تو وہ ٹول کیا ہے؟ قرآن. قرآن. ہمارے پاس قرآن ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ، علم. قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ علم. لیکن کیا علم کافی ہے؟ نہیں. اب اس علم کو کس میں بدلنا ہے پتہ ہے؟ اس علم کو کنورٹ کرنا ہے نور میں. نور، لائٹ. اور یہ لائٹ، اب دیکھیے آپ کے گھر میں اگر بچے پڑھائی کر رہے کہیں پہ اور وہ اندھیرے میں بیٹھے، تو آپ فرسٹ چیز آپ کیا کرو گے؟ اس روم میں جاؤ گے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ بولو گے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ لائٹ سوئچ آن کرو گے نا. اور پھر کہو گے کہ اب اجالے میں بیٹھو تاکہ تمہاری کتاب تم کو کلیئرلی نظر آئے. اور اگر ان کی کتاب بند پڑی ہے اور کل ایگزام ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ جا کے اب لائٹ لگاؤ گے، پھر آپ ان کو جا کے بک کھولو گے. آپ اپنے ہاتھ سے کھول کے دو گے اس کے ہاتھ میں کہ بک بند کیوں پڑی ہے، کل ایگزام ہے. یہ موبائل ہاتھ میں ہے، اس کو لے کے آپ کیا کرو گے؟ یو ول confiscate، ہے نا، یو ول ہیو ٹو confiscate the distractions. موبائل ڈسٹریکشنز ہٹاؤ گے. اگر وہ سو رہے نا، تو آپ اپنے ہاتھ سے جاؤ گے، ان کو اٹھاؤ گے، کھڑا کرو گے، بولو گے جاؤ منہ دھو کر آؤ. Am I right? Because I do this with my kids every day, so I can share it with you. آپ اٹھو، بولو گے اٹھو، جاؤ منہ دھو کر آؤ. تو پانی کیا ہے؟ سب سے پہلا کلینزر. یہ ہمارے ہوش ٹھکانے لے آتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو بٹھاتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کچھ کھانا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو کھا پی لو. اب اپنی کتاب کھولو. کتاب کھول کے، کوئی بھی کتاب کھول کے بٹھا دو گے. کل کون سا پیپر ہے، اس کی سلیبس کیا ہے، کون سی بک کھولنی ہے. آپ لاسٹ چیپٹر نہیں پڑھاؤ گے، جو سلیبس ہے وہ کھولو گے. تو اسی طرح ہمارے پاس قرآن ہے. اب آپ بیٹھ کے ڈے 1 اپنے بچے کو سورہ بقرہ نہیں پڑھا سکتے، تو آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو کیا سکھاؤ گے؟ واٹ ول یو چوز ایز اے دائی، ایز اے ٹیچر؟ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھاؤ گے. ویری گڈ. تو بولے گا میں یہ اتنا تو میرے کو آتا ہے نا ممی، یہ تو ہم روز نماز میں پڑھتے. پھر آپ اس کو ایکسپلین کرو گے. آپ سورہ ناس سمجھاؤ گے، سورہ فلق، سورہ ناس. بولیں گے یہ بھی ہم روز پڑھتے نا ممی، آپ تو روز پڑھوا کے دم کرواتے. پھر آپ آؤ گے سورہ اخلاص پہ، قل هو اللہ احد. وہ بولیں گے یہ بھی آتی ہے مما. تو آپ بولو گے اس کا میننگ تو سمجھو کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک. اور آپ توحید سے شروع کرو گے تاکہ آپ کے بچے شرک سے بچے، ہے نا. الحمدللہ. تو یہاں پر فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جوڑا، صرف ایک اللہ سے. رب کی پہچان دلائی کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ کہے گا اچھا اللہ ابھی بھی تم کو معاف کر سکتا ہے، تمہارے اتنے تکبر اور ظلم کے باوجود ایک اور موقع ہے.
ہم ہمارے بچوں کو یہی دعوت دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آج دن تک ہم نے جو گناہ کیے وہ معاف کرنے کو تیار ہے، بس اللہ سے جڑو تو صحیح. یعنی اللہ کی محبت، اس کی مغفرت میں اس کی محبت چھپی ہے. اچھا میں اتنا گناہ گار ہوں پھر بھی میرا رب مجھے معاف کرنے کو تیار ہے. ہاؤ سویٹ آف اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ کی پہلے محبت یاد دلائے، پہلے جہنم سے شروع نہیں کریں گے، معافی، توبہ، جنت اور پھر جہنم کی بات کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا داعی بنا دے، قرآن سے اور اللہ سے جوڑنے والا بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.